everyone. I welcome all of you to my YouTube channel, and this is Monty. You're watching Mystic Sorcerers. So today we will be doing a pick a card tarot reading. Okay, but this reading is going to be very specific, right? And ये उन लोगों के लिए है if you have a certain inclination towards investing. ओके, इन्वेस्टिंग मतलब शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो और बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट करते हो, क्रिप्टो करेंसी, ये सारे टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है और आप एक्टिवली वहाँ पे invested ho, you are very much focused on wealth creation. Okay, so this particular reading will help you to get better clarity. Okay, so ये reading जो है it is inspired from my own life. A few days before, one person came to me. That person was my client. He came to me for his career advice, and I figured out that he was an investor. Okay, and he was actively invested in share market, and something went wrong and he was not going doing good in his career. And from that incident, I got this idea that many of us love to multiply our money. Okay, I mean, most of us have certain interest in share market, right? हम share market में invest करते हैं. We love multiplying our money through different schemes. So if you have certain passive income source and you want to grow your money, you want to educate yourself, you want to um, align your energy uh, in a certain way so that you thrive in your wealth creation investment career. So this particular reading will help you get the guidance, because see, tarot can give you guidance in any area of your life, be it career, money, relationship, health, in any area of your life. So why not in the area of investment? Because I that was, honestly telling you, that was my first experience when I worked with that client. And he uh, came to me to get insight on his investment business. I figured out how beautifully tarot can guide him, because all of the guidance I gave him, he actually related with his share market skills. And he actually told me that, you know what, you're pretty accurate, because these are the areas I was doing wrong. Okay, I was so emotionally attached when I was trying to pick my shares, and that is why it was misleading my decision of picking right kind of a shares. So energy, all these things are based on energy. Okay, when you are operating from a right kind of a energy, you get clarity, you are so tuned that you get intuitive guidance that what to choose, where to invest, how long you should be invested, and when is the time to come out of this investment. Okay, what you're doing wrong and what you're doing right. And after that person, I actually come across multiple clients who actually came to me for their problem, and most of them were uh, connected to their share market business. Every time I saw a beautiful change in their life, and the guidance was so proper and so clear that I understood that why not I create a beautiful tarot spread for all those people who love investing money, who love multiplying their money, or you actively participate in share market investment. So stay tuned, let's we understand the energy behind it, and if you have certain energy blockages, and how you can overcome it so that you thrive in your share market business. Okay, so यहाँ पे दो crystals है, right? This is pile number A, right? And this is pile number B.
ओके, सो these आर टू पाइल्स एंड आप इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट करें, वीडियो को पॉज कर ले, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, ठीक है। स्लो डाउन योर breathing and take deep breath, inhale and exhale, focus on your breathing, and while you feel relaxed, then you pick the crystal. ओके, एंड ये रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी, ठीक है। ये स्टोरी किन एक पर्सन से रिलेटेड है जो मेरे क्लाइंट थे, जो मेरे पास आए थे। सेम उनके शेयर मार्केट बिजनेस से उनको एडवाइस चाहिए थी। उस इंसान के केस में क्या हो रहा था कि वो बहुत टाइम से शेयर मार्केट में लॉसेस से जा रहे थे, ओके। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था और फिर भी वो निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बैक टू बैक उनके जो भी एक्शंस थे वो रॉन्ग प्रूफ हो रहे थे, ओके। सो वो बहुत लॉसेस के थ्रू जा रहे थे, एंड द वर्स्ट पार्ट वाज हिज वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग, एंड उनके फैमिली को नहीं पता था कि उन्होंने मैक्सिमम उनके प्रॉपर्टीज के पैसे वो शेयर पे वो लगा के बैठे हुए हैं, और जिसके ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, बहुत ज़्यादा लोन है। तो वो एक्चुअली हेल्पलेस फील कर रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। So during that period, he was not able to understand what to do, whether to stop, whether to move ahead, what is wrong with him, whether this particular career is suitable for him or not. So ऐसे situations कभी कभी हमारे लाइफ में आते हैं जहाँ पे हम रॉक बॉटम हिट कर जाते हैं। देन वी स्टार्टेड डाउटिंग आवर सेल्फ कि whether this particular career is meant for us or not. So उनके केस में I saw one thing, that this person इनके जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो करियर है इनके लिए बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि इनके अंदर सर्टन पैशन है अबाउट इन्वेस्टमेंट, ओके। और कुछ स्किल्स उनका यूनिक है, गॉड गिफ्टेड है, जो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर व्हाट वेंट रॉन्ग उनके केस में, एक चीज़ जो उनको गलती पे गलती करा रहा था वो ये था उनका लैक ऑफ अवेयरनेस। he becomes so obsessed with the outcome, and he was actually unknowingly operating from a greed, lack based energy. तो उनका पहले जब उन्होंने शेयर मार्केट की बिजनेस को स्टार्ट करा था, तब उनके अंदर एक अबंडेंस माइंडसेट थी, ओके। ही वाज जस्ट flowing and playing with the money, okay। and वो जब एनर्जी से वो ऑपरेट कर रहे थे, इट वॉज वेरी काम, वेरी पीसफुल एनर्जी, एंड वो अबंडेंस एनर्जी से वो ऑपरेट कर रहे थे, ही अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। बट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ही बिकम्स सो अडिक्टिव into it, so it become like a सट्टा for him। and उनके केस में उनका जो उन्होंने क्या गलती की कि he did not maintain that boundary, where to stop, he becomes so addictive। लॉट ऑफ टेम्पटेशन कभी कभी हमें ना हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर देती है। सो बिकॉज ऑफ हिज टेम्पटेशन दैट एक्चुअली सेल्फ sabotaged him। सो he's एक्चुअली सेल्फ sabotaging बिहेवियर जो था उनके इन्वेस्टमेंट करियर में इफेक्ट कर रहा था, एंड वो चक्रव्यूह में फंस गए थे, उससे वो निकल ही नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, बी इट इन्वेस्टमेंट, आपको अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ यू सी मनी, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विथ मनी। बिकॉज व्हेन यू नो अबाउट योर रिलेशनशिप विथ मनी एंड व्हाट टू वर्क ऑन एंड व्हाट टू रिलीज एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट, ओके, जितना आपके पैसे के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होगा स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली, आप उतना ज़्यादा अबांडेंस के साथ अलाइनमेंट में रहोगे, ठीक है। ये सुनने में लग सकता है अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट मतलब बता देती हूँ मैं। अलाइनमेंट मतलब जब आप मान लीजिए ये आप हो और ये मनी है, ओके। मनी इन द सेंस मनी का भी कलेक्टिव एनर्जी होती है, ओके। इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज एनर्जी। वी नो the law of energy conservation law, that everything is energy and we cannot create or destroy energy,
okay? Energy can only be transformed, right? So इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। आप हो, मैं हो, इवन ऑफ द मनी, मनी का भी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। सो लेट्स से दिस इज यू एंड दिस इज मनी, मनी का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। द मोर यू विल हील योर subconscious fear, the more you will heal your energetic blockages, the more you will come into alignment with money। एंड जब आपके और मनी के फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा तो आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है? समझ में आई बात? तो प्रॉब्लम क्या होती है जब भी हमारे फाइनेंसेस में डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं, या फिर अब आपको लग रहा है कि आप अपने फुल पोटेंशियल से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन देयर इज स्टिल सम सॉर्ट ऑफ, लेट्स से, एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस। एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को कैसे मैं समझाऊँ, एक मिनट। लेट्स से यहाँ पे जैसे ये एक कैंडल है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्लॉकेजेस हैं जहाँ जो आपको मनी के अलाइनमेंट में आने नहीं दे रहा है। तो ये एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस को जब भी हम क्लियर करते हैं, कैसे क्लियर करेंगे? ऑफ कोर्स बाय बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ आवर फाइनेंशियल हैबिट्स, बाय बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ आवर एनर्जी की थॉट्स, आवर पैटर्न, आवर सबकॉन्शियस पैटर्न। और जितना अवेयर होंगे उतना हीलिंग होगा, उतना रिलीज करते रहेंगे, एंड देन स्लोली स्टेडली वी विल कम इन टू अलाइनमेंट विथ आवर डिजायर्ड मनी गोल। ओके, डिजायर्ड मनी गोल जो आप अचीव करना चाहते हो थ्रू योर इन्वेस्टमेंट बिजनेस। सो आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल, और आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे 2 क्रिस्टल है, अगर आपने क्रिस्टल पिक कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प में आप क्लिक करें और डायरेक्टली अपने रीडिंग को देखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इट्स फॉर फ्री, ओके? एंड जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो आई ऑल्सो गेट सम बेनिफिट, ओके? एंड और जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और अगर आपको पर्सनल सेशंस चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप रीच कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अभी हम पाइल ए की रीडिंग करेंगे। हेलो हेलो हेलो, पाइल नंबर ए, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओके? पाइल ए, मुझे जो लग रहा है आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो ऐसे एक सिचुएशन में हो जहाँ पे हो सकता है आपको अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, ओके? हो सकता है नए तरीके का कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, या हो सकता है आप पहले सिर्फ म्यूचुअल फंड्स करते थे, या अभी आपको आपके किसी एडवाइज़र ने या कोई मेंटर हो सकता है जो जिसको आप फॉलो करते हो, उन्होंने, या आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है, उन्होंने आपको ये गाइडेंस दी है कि आप एक अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट भी करो। कुछ एक नया तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ आपको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया गया है शायद। हो सकता है आप पहले एसआईपी करते थे, या आपके इन्वेस्टर ने आपको बोला है, आपके इन्वेस्टर या आपके मेंटर ने आपको बोला है कि आप लम सम में फोकस करो, या वाइस वर्सा, ओके? हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो जिनको एक इन्फ्लुएंस मिला है, ओके? आपको एक इंस्पिरेशन मिला है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का, और एक जो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कुछ चेंजेस, कुछ नया तरीका, कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करने के लिए आपको बोला जा रहा है। हो सकता है आपके पोर्टफोलियोज़ में चेंजेस लाने के लिए बोला गया है, ओके? हो सकता है कुछ गोल्ड बॉन्ड्स में आप पहले इन्वेस्ट नहीं करते थे, पर अभी आप सोच रहे हो कि आप करो, या हो सकता है सिल्वर, बट एक नए तरीके का स्ट्रैटेजी आइडिया आपको मिला है। हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ थ्रू, हो सकता है किसी एक पर्सन के थ्रू जिससे आप एडवाइजेस लेते हो आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हो सकता है आपका मेंटर, ठीक है? पर ये चीज़ आप एक्चुअली चाहते हो अभी ग्रो करना, ओके? दिस इज़ योर सोल कॉलिंग कि मुझे इस पर्टिकुलर वे में स्टार्ट करना है। इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो
पहले सिर्फ अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते थे, पर अभी आपको लग रहा है कि यू आर केपेबल इनफ कि आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हो। ओके, लोगों को भी आप कंसल्टेशन दे सकते हो सकता है आप सोच रहे हो पैरेलली आपका कोई इन्वेस्टमेंट का कंसल्टेशन स्टार्ट करने का। ओके, तो अ, ये जो भी है, हो सकता है आपने सीखा है इन्वेस्टमेंट किसी मेंटर से। ओके, किसी मेंटर से आप सीख के अपना खुद का ही स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज योर सोल कॉलिंग। पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको रोक रही है। डीप डाउन दिस इज योर सोल कॉलिंग, यू वांट टू टेक रिस्क, यू वांट टू start or restart something in your investment थिंग, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ रोक रहा है। मुझे लग रहा है ये कुछ लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पहले आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सटर्नल एडवाइजेस लिए हैं, बट वो तो ज़रूरी होता है, पर एट द सेम टाइम आपने आपको थोड़ा सा अपने आप के साथ भी टाइम बिताना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। तो पाइल ए, आप लोगों के केस में क्या प्रॉब्लम है कि हो रहा है आप लोगों को कि यू लैक सेल्फ ट्रस्ट। आप अभी तक आप शायद किसी के गाइडेंस में काम कर रहे थे या कुछ एक नोन आपका टेरिटरी था, हो सकता है कि एक ही तरीके का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे तो जिस एरिया में आप बहुत माहिर थे, पर अभी कुछ नया तरीका स्टार्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप सोच रहे हो। बहुत लोगों के केस में हो सकता है कि आप रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर रहे हो। ओके, या किसी ने आपको कहा है कुछ नए तरीके का स्कीम है जो आप सोच रहे हो, लेट्स शुड आई टेक अ रिस्क, एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर, आप रेडी हो, पर कुछ ना कुछ आपको फिर सोचने में मजबूर कर रहा है। कुछ शायद आप किसी के स्टोरीज आपके दिमाग में है, शायद उसका नहीं चला था, तो वो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है। ओके, हो सकता है आपकी इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको आगाह कर रहे हैं कि सी देखो, इनका नहीं चला था, उनका नहीं चला था, तो एक बार सोच लेना, उन्होंने बहुत लॉस हुआ था। पर कहीं ना कहीं पहले आई फील कि आपका एक सोल कॉलिंग है, आपको जैसे अंदर ही अंदर एक अर्ज फील हो रहा है टू वर्क ऑन दैट पाथ। ओके, बट एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट है। ठीक है, खुद पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हो आप, राइट। अब देखते हैं कि क्यों आप भरोसा नहीं कर पा रहे खुद के ऊपर। ओके, ओके, सो खुद के ऊपर भरोसा नहीं करने के पीछे आपका एक रीज़न है, आपका अनहेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स। ओके, यहाँ पे अनहेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत लोगों का होता है। आई फील पाइले आप लोगों के केस में जो चीज़ मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है, आप लोग वैसे इंसान हो जिनको इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट के मामले में ऐसा फील होता है आपको कि बहुत ज़्यादा रिस्क आपने शायद पास्ट में नहीं लिया, मॉडरेट रिस्क लेते थे आप। ठीक है, इट्स ओके, बट इस पर्टिकुलर जो भी अभी आपके लाइफ की सिचुएशन है, यहाँ पे शायद आपको ज़्यादा कमिटमेंट, ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज शोकेस करना पड़ेगा सो दैट यू गेट अ बेटर आउटकम। बट यहाँ पे आपके पैर क्यों लड़खड़ा रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आप लोगों के अंदर एक शायद ये कंडीशनिंग रह सकती है कि आपको प्लेजर में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसे चाहिए होती है। हो सकता है कि आपके हाथ में जो एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा मनी कितना है, वो बहुत मैटर करता है आप लोगों के लिए। बिकॉज इफ़ यू सी योर बैंक अकाउंट, आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर पैसे आपको थोड़े से कम दिखते हैं, कि आपके पास खर्च करने के लिए पैसे कम है, पर आपने मैक्सिमम पैसे इन्वेस्ट कर लिया, दैट गिव्स यू सर्टन काइंड ऑफ एंजाइटी। ओके, दैट मीन पाइले कि आप लोगों के अंदर ये चीज़ है कि यू फोकस ऑन योर वांट्स फर्स्ट देन योर नीड्स। मतलब कोई पैसा आपको बाद में अभी इन्वेस्ट करने से बाद में आपको वो मल्टीप्लाई होके मिलेगा, पर उसके लिए यू नीड टू कीप दैट मनी इन्वेस्टेड, राइट। यू नीड टू मैनेज योर समटाइम्स यू नीड टू मैनेज योर प्लेजर्स। ओके, कि अपने एक्सपेंडिचर में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू दैट एंजाइटी। आपको बहुत गरीब गरीब फील होता है जब आपके अकाउंट में या आपके पॉकेट में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हो। ओके, एंड जो भी
तरीके में आप आगे बढ़ रहे हो, उससे आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा कमिटमेंट भी आपको चाहिए। कमिटमेंट टू थोड़ा सा अपने खर्चे पे कंट्रोल करने का। ओके, एंड दैट इज़ एक्चुअली स्टॉपिंग यू। ये कहीं ना कहीं पाइल ए आप लोगों का एक ये हो सकता है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। मे बी आपको बचपन में बहुत सारे केसेस में आपके घर वालों ने मना करा है। अब जब भी आपने कुछ मांगा है या जब भी आपने कोई इच्छाओं का बोलते हैं ना कि हम मांगते हैं अपने घर वालों से कि सी आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, राइट, इट कुड बी वेरी मिनिमल थिंग, पर आपके घर वालों ने शायद बहुत बार आपको नहीं नहीं होगा या कहाँ से पैसे आएंगे, ऐसे सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोले होंगे जिससे आपको लगा कि यू आर नॉट अलाउड टू फुलफिल योर वांट्स, या आपके आपके जो भी डिज़ायर्स है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और उस बचपन की उस कंडीशनिंग से आपके अंदर क्या हो गया है कि जब भी यू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यू फोकस ऑन हाउ यू कैन एक्सपेंस इट, हाउ यू कैन परचेज अदर थिंग्स। तो विच इज़ अ गुड थिंग, राइट, हमें पैसे खर्च करके प्लेजर फील होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज पाइल ए कि यहाँ पे आपके एंजाइटी होने का रीज़न ये है कि इस पर्टिकुलर जो भी आपका आइडिया आपको मिला है या जो भी स्ट्रैटेजीज़ में आपके चेंजेस आ रहे हैं, उससे इस पर्टिकुलर हैबिट के साथ आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि जब भी आपके पास आपको अपने खर्चे करने के हैबिट में थोड़ा सा मैनेज करना पड़े, उससे जो मनी एंजाइटी आपके अंदर हो रहा है या जो एक लैकनेस फील हो रहा है कि यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन योर वांट्स, ओके, राइट, तो ये यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। दिस पर्टिकुलर चेंजेस से आपकी इस ये जो इमोशन है जो चाइल्डहुड से है, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में अभी भी है, ओके, व्हेन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी दैट गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ richness, right? Even if you are investing money just to multiply your money, but still आपका जो अनकॉन्शियस है वो उस तरीके से सोचता नहीं है, वो आपका न्यूरल पाथवे कुछ अलग तरीके से आपको ट्रिगर करता है, ठीक है। उसे सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब वो देखता, उसे पता चलता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू मेक सर्टन एक्सपेंडिचर। जब आपको खर्चे करने में कोई रोक टोक ना हो, तभी आपके अनकॉन्शियस को सेटिस्फेक्शन मिलता है और दैट फीलिंग आपको आता है कि यू आर रिच। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाया या जो भी आपका सोल कॉलिंग है, मे बी टू बिल्ड सर्टन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बिजनेस, तो यहाँ पे आपको इस जो टेम्पटेशन है इसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, राइट। ये काम क्या होता है कि जब भी आपको लगेगा कि हाँ यू हैव वेरी रेस्ट्रिक्टेड मनी टू इन्वेस्ट इन योर प्लेजर्स, आपके वांट्स में खर्चा करने के लिए आपका जो है ये पैसे थोड़ा सा लिमिटेड हो गए हैं, तो उससे आपके कुछ डिफ़िकल्ट इमोशंस बचपन के अनकॉन्शियस के ट्रिगर होंगे, राइट। हो सकता है आपके बॉडी में फ्रीज आपको फील हो, ठीक है, फ्रीज मतलब आपको ऐसा फील हो सकता है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड इनफ, यू आर फीलिंग लैक, एक लो सेल्फ स्टीम आपका ट्रिगर हो सकता है। पर यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस दैट इट इज़ नॉट एक्चुअली लैक ऑफ मनी, इट इज़ यू आर बिल्डिंग अ फ्यूचर ऑफ unlimited wealth, okay, you are building a future of abundance, you are actually multiplying money, it is like एक ट्री को बड़ा करना, जैसे हम एक सीड को प्लांट करते हैं जिस ताकि एक ट्री बने उससे, तो ये कंटिन्यूअस काउंसलिंग आपको अपने आप के साथ करना है। बिकॉज आप देखोगे कि जब भी आप इस पर्टिकुलर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट में चेंजेस लाओगे, you will see that your brain is continuously finding options। आपका ब्रेन आपको continuously कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा कि see I need that, see I want that, see I want this, okay, आपको समझ में आएगा। अगर आप अपने आप को उस इमोशन से डिसोसिएट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ योर ब्रेन इज एक्चुअली responding or reacting certain kind of situation of yours. You will see your brain will actually
give you options कि I want this, I want that, and you do not have enough to fulfill all those desires. Okay, and it will trigger a feeling of lack. But there is a beautiful uh, opportunity to clear this lack, to attract more abundance. When you feel that lack, when you acknowledge that lack and where it is coming from, it is not coming from the current decision that you made, it is coming from your childhood. कि जब भी आपको खर्च करने के लिए इनफ मनी नहीं दिखता है, दैट ट्रिगर सर्टन काइंड ऑफ इमोशन विद इन यू, इवन इफ योर मनी इज इन्वेस्टेड इन मल्टीप्लाइंग, आपका मनी एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है, बट योर ब्रेन इज सो मच फोकस्ड ऑन, यू आर नॉट एबल टू buy the things that you really want. ओके, सो यहाँ पे आपके प्लेजर में, आपके टेम्पटेशन में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, राइट? एंड ये जो भी इमोशंस आपको करे फील होगा, उसको फील करना है, उससे भागना नहीं है. द मोर यू विल फील एंड द मोर यू विल counsel yourself, see that I am actually growing money by investing into some profitable schemes. It is not like that I have less money to buy what I want. It is like I am building more, I am building source so that I can have enough money, right? तो ये एक आपको चैलेंज होगा, राइट? ये आपको थोड़ा सा नम फील करवा सकता है. हो सकता है आपको एक फ्रीज मोड फील हो कि यू फील सर्टन विड्रॉल फ्रॉम योर करियर, मे बी कुछ अच्छा ना लगे आपको. तो यहाँ पे आप एक क्या कर सकते हो कि एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो कि यू सी फॉर योर सेल्फ, यू सी कि कितना पैसा आपको आपके हाथ में चाहिए जस्ट टू एक्सपेंस, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जब आप खर्चा करते हो, वो जो प्लेजर आपको मिलता है उससे, वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो एक इतना भी ज़्यादा आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट मत ले लीजिए आप, जहाँ पे आपको लगे कि या यू नीड टू compromise most of your needs, most of your pleasures. Understand what are your non-negotiable needs, non-negotiable temptations, because ये भी इंपॉर्टेंट है. हमारे लाइफ में प्लेजर भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम प्लेजर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, दैट एक्चुअली गिव्स अस द फीलिंग ऑफ फील गुड. बट ये आपको एक बैलेंस करने की ज़रूरत है पहले. ओके, ये आपका कहीं ना कहीं एक, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये आपका वीकनेस भी है, जहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है कि आप अपनी नीड्स से ज़्यादा अपने वांट्स में ज़्यादा फोकस कर लेते हो. ठीक है, कि यू मान लीजिए ये अगर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको बता देती हूँ क्या है. मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसका जो डे टू डे लाइफ की नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि घर का चलाना, गैस का खर्चा, उसके कुछ बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, जो आपका नॉन नेगोशिएबल है, दैट नीड्स हैज़ टू बी मेड. आपका खाने पीने का खर्चा, रहन सहन का खर्चा, ये दीज आर ऑल योर नॉन नेगोशिएबल नीड्स. तो उनके केस में क्या होता था, वो वहाँ पे अपने नीड्स में बहुत काट करते थे, सो दैट ही गेट्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड इन हिज डिज़ायर्स मतलब प्लेजर्स. जैसे वॉन्ट्स में, लेट्स से वॉन्ट्स क्या हो सकता है, वॉन्ट्स हो सकता है उनका कुछ बुक्स का खरीदना, वॉन्ट्स हो सकता है उनका कुछ बार्स या पार्टीज़, वीकेंड पार्टीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना, या कुछ अल्कोहल में ज़्यादा इन्वेस्ट करना, कुछ लग्जरी वॉचेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर प्लेजर्स. तो उनका ये एक टेंडेंसीज था कि वो अपने बेसिक नीड्स में कॉम्प्रोमाइज़ करते थे. ओके, कभी ना कभी उनके केस में ऐसा होता था कि उनका जो बेसिक नीड्स है वो मिट नहीं हो रहा है, बिकॉज आफ्टर गेटिंग द मनी ही हैज़ एक्चुअली मेड ऑल ऑफ हिज प्लान्स टू इन्वेस्ट इन हिज वॉन्ट्स. ठीक है, उनके डिज़ायर्स के लिए इतना ज़्यादा हो जाते थे कि वो ये नहीं समझ पाते थे कि हिज नीड्स हैज़ टू बी मेड बिफोर ही इन्वेस्ट इन टू हिज वॉन्ट्स. ठीक है, उनके लग्जरी वॉचेस हुआ, या उनके वीकेंड्स पार्टीज हुआ, उनके अल्कोहल्स हुआ, उनके कॉस्टली क्लोथ्स हुआ, दैट कम्स इन द सेकेंड प्रायोरिटी. बट बिफोर दैट हिज बेसिक नीड्स हैज़ टू बी मेड, राइट? वहाँ पे कुछ नेगोशिएट या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है. पर उससे क्या होता था कि वो अपने जो
पैसे हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स में इतना ज़्यादा लगा देते हैं, उनके उनके जो वॉन्ट्स में इतना ज़्यादा वो प्री ऑक्यूपाइड करके रखते हैं उनके पैसे को, कि एवरी टाइम जो डे टू डे लाइफ की नीड्स है उनके उसके केस में जब भी उनको बेसिक नीड्स के लिए खर्चा करना पड़ता था, दैट यूज टू गिव हिम सर्टन काइंड ऑफ मनी एनजाइटी। उनको एक एंशियस फील होना, उनको ऐसा फील होना कितने खर्चे हैं मेरे यार, मेरे बच्चे के पीछे खर्चा है, मेरी बीवी के पीछे पीछे खर्चा है। पर अगर देखा जाए दैट आर द बेसिक नीड्स, पर उन्होंने अपने टेम्पटेशन में इतना ज़्यादा खर्चा कर लिया है ऑलरेडी जिसमें वो मैनेज कर सकते थे, पर उनको ऐसा फील होता था कि आई नीड टू बाई एवरीथिंग वट एवर इज कमिंग इन माई माइंड। सो ये कहीं ना कहीं आपके बचपन से होता है, जब बचपन में आपको बहुत ज़्यादा मना कर दिया गया है कोई चीज़ के लिए, आपने जब भी क्रेव करा था, या आपको ऐसा फील हुआ है कि आप बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस वाले सिचुएशन से आए हो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, आपके इच्छाओं को मारना पड़ा, तो एडल्ट लाइफ में आपकी जो टेम्पटेशन वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में आ जाता है। तो इट इज़ जस्ट दैट कि पहले यू नीड टू बिकम अवेयर, ओके, कि कितना आप अब्जॉर्ब हो जा रहे हो अपने प्लेजर में, ओके, कितना ज़्यादा प्लेजर आपके लिए मायने रख रहा है, ओके, दैट इज़ वेयर योर वर्क इज़, ओके। एंड पाइल ए, आप लोगों का जो स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे, आप लोगों का स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये है कि आप लोगों के अंदर एक सर्टन सरेंडरेंस है, ठीक है, सरेंडरेंस टू योर गुरु, ओके। आप लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करने का एक स्ट्रेंथ है, ओके, एक डिवोशन है। तो ये आप लोगों को हेल्प कर सकता है आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आई सी यू पीपल हैव दिस वेरी गुड क्वालिटी ऑफ डिवोशन, कमिटमेंट, कि आप अपने जो मेंटर है, आपका जो भी, जिससे भी आप एडवाइजेस लेते हो, उनके ऊपर आप ब्लाइंड फेथ रख के चल सकते हो, ओके। यू विल नॉट क्वेश्चन एनीथिंग इफ दे टेल यू टू फॉलो, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ ऑफ योर्स, पाइल ए। सो ये पर्टिकुलर चीज जो आप लोगों का है वो आपको स्ट्रक्चर में लाने में हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक, पाइल ए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप एक मेंटरशिप के अंडर काम करना चाहते हो, या आप कोई एडवाइजर्स के अंडर काम करना चाहते हो, इट इज़ अ गुड थिंग। और जब अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे हैबिट्स हैं जहाँ पे आप फाइनेंसिस को स्ट्रक्चर नहीं कर पाते, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते, देन टेकिंग एन थर्ड पार्टी एडवाइस और अपने पैसे को एक थर्ड पार्टी को दे देना कि यू नो दिस पर्सन हैज़ अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड दे वेरी रिस्पॉन्सिबल, तो उनका हेल्प लेना, इट विल हेल्प यू ब्रिंग स्ट्रक्चर इन योर फाइनेंसेस, ओके। सो दिस इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर्स पाइले, कि आप ब्लाइंडली आपके जो मेंटर है या आपका जो भी एडवाइजर है उसके गाइडलाइंस में आप सरेंडर कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ ऑफ योर्स। तो आपको मैंने ये बता दिया कि कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है और कहाँ पे आपका वीकनेसेस है। जो स्ट्रेंथ पे आप फोकस करोगे तो ये जो डिज़ायर है आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने का, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। और जो आपकी लोअर इम्पल्सेस है कि अनकंट्रोलेबल टेम्पटेशन या टेम्पटेशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाना, आपके लाइफ के वांट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना, कि आपने अगर कोई चीज़ को इस महीने खर्च नहीं कर पाए तो आपके अंदर जो मनी एंजाइटी, जो लैकनेस की फीलिंग होना, इसको आपको थोड़ा सा अवेयर होना है और इसको आपको बार बार काउंसिल करके चलना पड़ेगा, ओके। अगर आपने सक्सेसफुल इस चीज़ को करा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आई सी यू ग्रोइंग, आई सी यू कमिंग इन टू योर पावर। आप ऐसे पोजिशन में आ जाओगे बाइले कि आपको लगेगा कि यू आर फाइनेंशियली फ्री एंड यू हैव दैट, सी मनी गिव्स यू लॉट ऑफ पावर, ओके, मनी गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस, राइट। तो ये आपको विक्ट्री मिलते हुए मुझे दिख रहा है। आई ऑल्सो फील दैट पाइले कि कभी कभी जब हमारे अंदर एक मनी एंजाइटी होती है ना, आप खर्च नहीं कर पा रहे हो, समटाइम्स यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी। आप हो सकता है अपने बॉडी को अब्यूज करने लग जाओ, या आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करने लग जाओ, या कहीं ना कहीं एक इमोशनल, अगर ये अप्स एंड डाउन्स होता है, हम अपने आप को नम करते हैं, एक एडिक्टिव नेचर हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पे इन्वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करना। तो या इस केस से थोड़ा सा अवेयर रहिए पाइले, ओके। इफ़ पॉसिबल
build a healthy habits of working out or exercising, because अबांडेंस का एक लॉ है, ठीक है। अबांडेंस का क्या लॉ है, क्योंकि पैसे एक्चुअली मटेरियलिस्टिक थिंग होता है, और मैटर यानी फिजिकल बॉडी। जितना आप अपने फिजिकल बॉडी का टेक केयर करोगे, अपने फूड्स हैबिट्स का टेक केयर करोगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करोगे, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। तो आपका ये जो एंजाइटी है वो भी आप देखोगे कि बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स क्योंकि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट वाली इमोशंस आपको ट्रिगर होंगी, बट दिस ट्रिगर इज फॉर योर हाइस्ट गुड। The more you will feel that trigger, acknowledge that trigger, the more you will release, okay, the more you will actually grow, okay। So trigger are actually good thing। जितना आपको ट्रिगर होता है उतना आपको पर्जिंग होती है। पर्जिंग मतलब क्या, ट्रिगर होना मतलब आप रिलीज कर रहे हो उस चीज को, ठीक है। ट्रिगर होना मतलब ट्रिगर को एक्नॉलेज करो और रिलीज करो उसको। जब भी ट्रिगर को आइडेंटिफाई करो, फील दैट फीलिंग, एक्नॉलेज दैट फीलिंग एंड जस्ट रिलीज दैट फीलिंग, ओके। एंड पाइल ए, ये था आप लोगों का रीडिंग, ठीक है। एंड बाउंड्री की लर्निंग है आप लोगों की, और एक इमोशंस को अपना कंट्रोल में रखना है, बैलेंस करके चलना है, और इंटेलेक्ट के साथ डिसीजंस लेना है, राइट। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस आप अपने इमोशंस से ज़्यादा ओवरवेल्ड होके मत लीजिए। एंड better thing is, the best way to approach is to get a guidance from third person who has that certain um, who has this good hold in finances, ओके। तो अगर आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का बिजनेस भी स्टार्ट करना है, तो मेक श्योर आपने जिनसे सीखा है उनके आप कांटेक्ट में रहिए, उनसे कंटिन्यूसली कंसल्ट करें। अगर आपको अपने लर्निंग के लिए कुछ और भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है तो उसमें कंजूसी मत करें, ठीक है। खुले दिल से अबंडेंस माइंडसेट के साथ आप मेंटरशिप में भी इन्वेस्ट करें, ताकि आपको एक मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, ओके। तो आपका ये जो डिवोशन है, ये जो आपके एडवाइजर्स के तरफ जो डिवोशन है, ये आपका स्ट्रेंथ है, कि कोई अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे आप बहुत अच्छे से बिना क्वेश्चन किए फॉलो कर सकते हो। सो मेक यूज ऑफ दैट स्ट्रेंथ, राइट। सो ये था आप लोगों का रीडिंग पाइल ए। तो समझ में आया होगा कि क्या आपका कैसा एनर्जी आप लोगों का हो सकता है, कहाँ पे आप लोग वीक पढ़ सकते हो, कौन क्या आपका स्ट्रेंथ है, राइट। दीज आर ऑल गाइडेंस एंड इट वॉज वेरी स्पेसिफिक रीडिंग। Make sure you have healthy boundary in case of your finances. Make sure how much you can invest in your needs and how much you can invest in your wants, okay। दोनों में से बैलेंस करके चलना है। कहीं पे भी अगर बहुत कट ऑफ कर दिया आपने तो आप इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। सो स्टे ट्यून्ड एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेक नोट ऑफ इट एंड अप्लाई, ओके। We will do reading for pile B now. So pile number B, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स में या आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी आपका स्किल है, जो भी आउटकम है, डिज़ायर्ड आपका गोल है, उसको अचीव करने में हेल्प करेगी, ओके। सो पायल बी, आई सी आप लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके। आई ऑल्सो फील pile B, many of you maybe in the past went through a loss, okay। It could be something related to your financial losses, right। इस पर्टिकुलर ग्रुप में बहुत लोगों का ऐसा है कि आप लोगों का कुछ पास्ट में आपने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, या कहीं पे आपने पैसे लगाए थे जो पैसे आपके बहुत जगह पे लॉसेस हो चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं अभी आप लोग एक ट्रांजिशन मोमेंट से जा रहे हो। यू पीपल आर ट्रांजिशनिंग, ओके, फ्रॉम द बैड फेज ऑफ योर लाइफ टू बेटर फेजेस। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चीज़ें स्टक थी, कुछ चीज़ें आपने खोया है, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ आइडियाज़ है जो काम नहीं करा है इन द पास्ट, बट अभी आप लोग उस पर्टिकुलर बैड मोमेंट में अपने आप को स्टक नहीं रख रहे हो। यू पीपल आर मूविंग फॉरवर्ड, विच इज़ अ गुड थिंग। ये आप लोगों का जो ये परसिवियरेंस है, ये आप लोगों की स्ट्रेंथ है,
pile A. Pile B, I also feel pile B, you have this strong mindset, जहाँ पे एक दो फेलियर या फिर जो भी चैलेंजेस वो आपको रोक नहीं पाता है, यू एवरी टाइम बाउंस बैक, एंड आई सी एनर्जी ऑफ you are bouncing back. You are very much optimistic about your financial situation, and you know that you are growing, which is a good thing. ओके आपके पास मुझे लग रहा है आप लोगों में के पास जितने भी रिसोर्सेस अभी है अवेलेबल, ओके, थोड़ा बहुत जो भी है उसी में से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उसी में से आप पैसे को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। ओके ये ऐसे केस में भी हो सकता है कि आप लोगों ने शायद पास में कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, कहीं पे लगाया होगा जहाँ पे पैसे आपके वापस नहीं आए या पैसे डूब गए हैं, कुछ लॉसेस आप लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिला है, ठीक है। पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग अंदर ही अंदर कभी कभी इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील करते हो, पर यू आर ब्यूटिफुली टैकलिंग इट, यू आर नॉट अलाउइंग योर ओवरवेलमिंग इमोशन influencing your decision, which is a very गुड स्ट्रेंथ ऑफ योर पाइल बी। मैक्सिमम लोगों का ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रहता है, यू पीपल डू नॉट अलाउ योर डिफ़िकल्ट इमोशन इन्फ्लुएंस योर चॉइसेस, इन्फ्लुएंस योर एक्शन, ठीक है। भले ही आपके नेगेटिव थिंकिंग इनसिक्योरिटीज़ बैकग्राउंड में नॉइस कर रहे हैं, पर स्टिल आप लोगों के अंदर वो एक बर्निंग डिज़ायर है, दैट inner strength, that resilience is so you have that resilience that helps you moving forward, no matter how much failure you have seen, no matter how much losses you have faced, no matter whatever the challenges you have gone through, but I see you moving towards victory, ओके। एंड कहीं ना कहीं पाइल बी आई ऑल्सो फील कि फाइनेंसिस के केस में मैं देख रही हूँ बहुत स्मार्ट एक्ट कर रहे हो, मैं देख रही हूँ यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, ओके। हो सकता है आप एक ऐसा कुछ कर रहे हो अपने फाइनेंसिस के एरियाज में जहाँ पे यू विल सेट अ न्यू एग्जाम्पल फॉर योर क्लोज वंस। हो सकते हैं आपके जो कॉन्टैक्ट्स में जो लोग हैं उनसे आपका नज़रिया बहुत अलग है। जब आप फाइनेंसिस को डील करते हो, हैंडल करते हो, आप बहुत लीडरशिप स्टाइल, आपका एक यूनिक स्टाइल है टू डील योर फाइनेंशियल स्टफ्स, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप एग्जाम्पल सेट करते हो सकता है आप जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हो वहाँ पे आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में एक ऐसे इंसान हो जिसको फाइनेंसिस की बहुत अच्छा नॉलेज है, ओके। एंड कहीं ना कहीं पाइल वी यू हैव दैट अबंडेंस माइंडसेट, ओके। इसलिए क्या होता है अबंडेंस माइंडसेट से अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा रेजिलियंस हो जाता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करने का। इवन इफ दे फेस सर्टन लॉसेस दे लर्न फ्रॉम इट एंड दे rebuild their new strategies, and I see you doing that, okay, and you're very much confident that you're going to shine, you're going to गेन द प्रॉफिट। इवन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है जितना भी मैंने खोया है ना उससे 4 डबल, उससे 10 टाइम्स प्रॉफिट आई एम गोइंग टू मेक विद दिस स्ट्रैटेजी, ओके। एंड वेरी गुड एनर्जी पाइल मी फ्रॉम यू पीपल। आई कैन सी कि आप लोगों का जो भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितना भी आपके पास बचा हुआ है उसमें ही आप मैनेज करके लगा रहे हो विद अ वेरी स्ट्रैटेजिक वे यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल, and it is surely going to give you amazing results because I see मैं in between तो read करूँगी पर मैं आपको outcome ही बता देती हूँ। I see you people are manifesting abundance। आप लोगों का जो मैं बोल रही हूँ ना कि आपका ये mindset है, आपको ये clarity है कि इसमें से ही मैंने जो खोया है उससे मैं 10 टाइम्स बिल्ड करने वाला हूँ या वाली हूँ, ठीक है। एंड ये जो माइंडसेट है, ये जो आपकी एनर्जी है, उससे यू आर क्रिएटिंग अबंडेंस। आप ऐसे एक फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिएट करने वाले हो जहाँ पे यू डू नॉट नीड टू बॉदर, यू डू नॉट नीड टू थिंक, मनी विल कम फ्रॉम different passive sources, okay। And maybe you people have learned the lesson not to keep all of your eggs into a single bucket। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये भी लर्निंग मुझे दिख रही है कि ये हो सकता है कि आप लोगों ने एक बकेट में मैक्सिमम एग्स को रखा था इन द पास्ट, बट नाउ यू अंडरस्टूड दैट कि आई नीड टू रिकंसिडर दिस थिंग, ओके। आई नीड टू
स्प्रेड माई एग्स इंटू डिफरेंट बकेट्स। ओके, मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट्स में अलग अलग तरीके के स्कीम्स में ब्रेन स्ट्रॉम करनी पड़ेगी। आई नीड टू इन्वेस्ट इन टू सर्टन स्कीम्स जहाँ पे द रिस्क आर हाई। आई नीड टू इन्वेस्ट इन टू सर्टन स्कीम्स जहाँ पे रिस्क इज़ मॉडरेट बट द सेफ्टी इज़ देयर। तो ये एक मॉडरेट अप्रोच से आप लोग चलने वाले हो, आई सी पाइल बी। सो ये था आप लोगों का लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, यू हैव अंडरस्टूड। मे बी ऐसे कहीं जगह पे आपने अपना मैक्सिमम एसेट लगाया था जहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा था और उससे यू आर फेसिंग कंसिक्वेंसेज एंड नाउ यू हैव लर्न द लेसन। आप लोगों की ये खूबसूरती है, आप ज़्यादा रोते नहीं हो कोई भी सिचुएशन से। थोड़ा बहुत रो लिया, थोड़ा बहुत या, बट यू डू नॉट लीव इन गिल्ट। तो दैट इज़ योर ब्यूटी। आप गिल्ट को बहुत जल्दी से डिस्कार्ड कर दो, कर दिया गलती खत्म है बात। ये आप लोगों का एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ये एंटरप्रेन्योरशिप वाली माइंडसेट है, एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हो आप लोग कि ठीक है। आप जब एक मैंने स्टोरी सुना था अबाउट वन एंटरप्रेन्योर कि उनके एक बहुत बड़े फैक्ट्री में आग लग गई थी। ओके, एंड पीपल वेर एक्चुअली शाउटिंग, दे आर रनिंग फॉर हेल्प, बट वो जो ओनर थे, द पर्सन वॉज स्टैंडिंग देयर calmly. The person was standing there and the person was watching his factory converting into ashes. वो अपने जो पूरे 40-50 साल का जो मेहनत है, जो फैक्ट्री था, वो उसको जल के राख होते हुए वो कामली ऑब्जर्व कर रहे थे। इट इज़ लाइक सो मच डिटैचमेंट ही हैज़ फ्रॉम हिज क्रिएशन, बिकॉज उन्होंने वो पर्टिकुलर बिजनेस को खड़ा करा था। he put his heart and soul, his sweat and blood, but still that person has mastered the lesson of detachment कि even if मैंने create करा था, he is so self assured that I'll create it again no matter what, but let me understand what mistakes I made that आज इस फैक्ट्री में आग लग गया and it is turning into ashes. Let me learn the lesson, and it will only possible if I detach myself from the current circumstances and I become an observer. I witness the situation from a higher perspective, so that next time I do not repeat the same mistake. Next time I create a better foundation. I create more solid foundation. ओके, एंड यही एटीट्यूड मुझे, यही स्टोरी जब भी मैं अपने आपके कार्ड्स को मैं स्प्रेड कर रही थी, मुझे दिख रहा था कि यू पीपल हैव दिस एग्जैक्ट माइंडसेट। आपको डार्कनेस में भी एक रीजनिंग ढूंढने की एक जो गिफ्ट है, कि वहाँ पे भी आप लेसन ढूंढते हो कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, what this thing was needed for my learning, for my growth, and that is why you have no regret. Okay, and यही आपका स्ट्रेंथ है while be okay, that आप regret नहीं करते। okay, you take everything as a part of life, you do not complain, you learn from it, and इसीलिए जितना भी आपको इंटरनल ओवर इमोशनल टर्मोइल फील हो रहा है, फेस हो रहा है, बट यू आर ग्राउंडेड, यू आर वेरी मच ग्राउंडेड पाइल बी। यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर बॉडी। बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो आप, इमोशन से आप ओवरवेल्म नहीं हो रहे हो। ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, नाउ व्हाट, नाउ आई फील पाइल बी दैट एक चीज़ जो है आप लोगों का अभी that is you need to acknowledge. Okay, it is hidden, it is, that is what you don't see, ये आपके unconscious mind की mind में चल रहा है, that there is a part within you that feels that you're still learning. Okay, you're still learning and you need to rebuild everything from the scratch. Okay, and अगर आपको yeah, what you don't see is pile B, that there is a part within you that feels that you're still learning and you're still not ready. Okay, ये आपकी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस की कंडीशनिंग है, राइट? ये आपके अनकॉन्शियस की कंडीशनिंग है। इसीलिए हो सकता है कि बीच बीच में आप कभी भी एक्शन लेने जाते हो तो थोड़ा बहुत आप फिर से रुक जाते हो, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा है, हो सकता है। पर ये चीज़ इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर स्टिल रिलीजिंग द पास्ट पेन, द पास्ट लॉसेस, द पास्ट ट्रॉमास। आप थोड़ा सा रिलीज प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, यू आर स्टिल लर्निंग, यू स्टिल नॉट रेडी फुल्ली कंप्लीटली। आप पूरे तरीके से
अभी तक रेडी नहीं हो, पर आप रेडी हो रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। तो हो सकता है कि आप लोगों के केस में थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है कि आप शायद जो जिस तरीके से एक्शन लेना चाहते हो, आपके आपका थॉट्स जो है, आपके इमोशंस पे आप काम कर रही हो, वेरी क्लियर इन योर हेड, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट इज अबाउट टेकिंग एक्शन, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले होना ये हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज अ पार्ट विद इन यू दैट फील्स इट इज नॉट ready yet. Okay, it feels that I need to learn a little bit more. थोड़ा सा और मैच्योरिंग की ज़रूरत है, इसलिए प्रोकास्टिनेशन कुछ हो सकता है, ओवर थिंकिंग कुछ हो सकती है जो आप लोग कर रहे हो वो, क्योंकि ये होता है, इट्स नॉट अ वेरी अनयूजुअल थिंग, क्योंकि पास्ट में अगर लॉसेस फेस करते हैं हम तो इट इज़ आवर ह्यूमन नेचर, वी टेंड टू बिकम लिटिल बिट कॉशियस, बट इसीलिए थोड़ा सा प्रोकास्टिनेशन हो सकता है। एंड पाइल सी व्हाट यू नीड टू रिलीज इज, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट आ गया है, ओके, फॉर द पास्ट थिंग, बट ये और इसके साथ क्या हो रहा है कि थोड़ा सा शायद फेथ के साथ आगे बढ़ने में कुछ ना कुछ एक अंदर से ही एक रेजिस्टेंस आप लोगों को आ सकती है कि आई एम स्टिल नॉट रेडी, एंड इफ आई show up, if I go for what I really desire, whether universe will grant me, ये एक पार्ट आपके अंदर है, ठीक है, इट इज़ योर दैट डुअलिटी पार्ट, ओके, पाइल बी, दो यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंस, बस कॉन्फिडेंट, ओके, कि यू विक्ट्री इज गोइंग टू बी योर्स, आपका जो भी लॉस गया है उसका प्रॉफिट आप लेके आपके लाइफ में आएगा ही, पर देर इज स्टिल पार्ट्स विद इन यू दैट यू नीड टू रिकनसाइल। कैसे कि वो सारे कुछ पार्ट्स आपके अंदर ऐसे भी है, अनकॉन्शियस के पार्ट्स है, जिससे कहीं ना कहीं एक डाउट हो रहा है कि एम आई एम आई रियली वर्दी ऑफ द गोल I want to achieve, of I mean, should I really ask for it? Should universe will universe give me that? Will universe grant me that? Will universe support me with this? कभी कभी जब हमें कोई ऐसा कुछ हमारे लाइफ में हो जाता है जो हमने उम्मीद नहीं करा था, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट इट वेंट रॉन्ग, समटाइम्स वी स्टार्ट डाउटिंग आवर worth, we start doubting whether we should ask for our wishes or not, whether we are allowed to dream about our goals। तो ये एक आप लोगों के अंदर हो रहा है, ये आपके अनकॉन्शियस का पार्ट है, यू आर स्टिल डाउटिंग, यू आर स्टिल क्वेश्चनिंग योर डिजायर, ओके, कि क्या मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, एम आई रियली अलाउड, एम आई रियली वर्दी ऑफ or capable of handling that amount of success that I am asking for it, okay। ये सारे ये थोड़े बहुत डाउट्स आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, जिससे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो जाता हूँ, स्टिल आई नीड टू डू आई नीड टू bring the attention to details into my action plan। and कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट जो भी लॉसेस है, पास्ट जो भी मिस्टेक्स आपने करा है, उससे यू हैव स्टार्टेड डाउटिंग, थोड़ा बहुत डाउट है, पर आई फील ये आपका फेथ टेस्ट है, ठीक है, आपका फेथ टेस्ट है कि वॉट एवर हैपन इन द पास्ट इट हैज़ अ पर्पस, it has nothing to do with your worth, it has nothing to do with your deservability, or how much abundance you can ask for, you can ask for whatever you want, okay, but yes, there is a process of becoming an energetic alignment with your desire। that mean अगर आप ये डिज़ायर करते हो कि you want to achieve 10x of financial गेन, ओके, मान लीजिए आपका एक ड्रीम है कि आपका एक गोल है, okay, so pile B, what I was discussing is, let's say you have set a goal that I should
get certain 10x amount of money from my investments or from my share market. Okay, but now all the preparation you need to do, okay, you need to do the physical level of work, you need to do the mental level of work, so that you come into that vibrational alignment with your goal. That is what the law of energy is. Okay, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आप आपके फ्रीक्वेंसी को उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइन करने में थोड़ा सा एनर्जी वर्क रिक्वायरमेंट होती है। यूनिवर्स एक्चुअली pushes you through certain kind of learning, pushes you to certain kind of lessons, so that you become that vibrational match. So ये आपको तैयार करा जाता है, यूनिवर्स कंस्पायर करता है चैलेंजेस लाके, चीज़ें आपके लाइफ में उथल पुथल करके, ताकि आप तैयार हो पाओ टू बिकम दैट वाइब्रेशनल मैच ऑफ योर फाइनेंशियल गोल। सो द थिंग इज पाइल बी, वट एवर यू वेंट थ्रू, इट हैज़ अ पर्पस, इट मेड यू a better version of yourself, so that now you execute your plan in a better way. Okay, you have grown up, your maturing has been done. Okay, now that that doesn't mean you are unworthy because you went through a loss. No, that loss was meant to happen so that you learn few lessons. Okay, so that you become resilient. ओके, सो दैट इज वॉट इट इज पाइल वी, कि आपके अंदर एक अनकॉन्शियस फियर है कि यू आर क्वेश्चनिंग वेदर आई एम स्टिल रेडी टू स्टार्ट my new investment, or whether I'm still ready to start this new work, or whether I'm capable enough, whether I should ask for it, or because in the past I was not able to handle it properly. Am I really worthy of it? I mean, is it safe to ask for what I desire from universe, or it is it is my audacity that I should not ask for it. So all these things are your mental conditioning. Pile B, you need to flush it out, because what you need to understand, stand on your ground. Okay, this is what your message is. Universe is telling you, stand on your ground. Okay, you can ask unlimited abundance, whatever you desire, and that your wish will be granted. There is no limit to you. Okay, you are only limited by your mindset. Whatever happened with you, it was needed for your growth. It has nothing to do with your desirability or your worth. Okay, so pile B, it is your faith test. You need to master self trust, you need to build confidence, and I can see you have confidence, but still there is little bit of faith test you are going through, that because you need to clear all those doubts. You need to mm, become more aware that whether you're associating yourself or your success with your past failure, because it has no connection with that. All your past failures was a lesson, and you have learned the lesson, but there is no association, okay, with your worth. And that is what it is. All those things was needed so that you become more authentic, you become aware of your own potential, your own desire. Ask uh, for your highest dreams, and see how universe help you make it reality. Have faith that you are worthy of unlimited abundance that universe have. ओके, जो भी फाइनेंशियल गोल है उसको छोटा मत कीजिए, बिकॉज पास्ट में आपने मांगा था और वो हुआ नहीं। पास्ट में जो नहीं हुआ वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि यूनिवर्स मेड यू resilient, so that once you achieve that goal you can handle it properly. ओके, वो कैसे होता है? वो फिजिकल चैलेंजेस के थ्रू ही हमारी जो ब्रेन मसल्स होता है वो डेवलप होता है। सो इट वॉज नीडेड। आई सी पाइल पी, दैट इज what you need to learn, you need to become aware of. Note it down, apply
in your life, I see you growing. I see you learning all the necessary lessons that you need to learn to become a good investor. And I see you thriving. I see you thriving, Payal B. Okay. हो सकता है आप लोगों के लाइफ में इतना लग्जरी, इतना पैसिव इनकम सोर्स हो दैट मनी विल जस्ट नेचुरली फ्लो इनटू योर लाइफ. You will have enough, more than enough, so that you can thrive, right? See, this card also, um, uh, actually I connect this card with goddess Lakshmi, and see how abundant she is. Okay, right? And see the golden light, see her attire, she represents Venus as well. So she represents the goddess Lakshmi. So see, I can see you attracting this sort of abundance into your life. When abundance will just come into your life, just flow into your life, you will become a magnet to money, prosperity, and abundance, and all the best, pile B. So it was your guidance that how you can proceed in your investment business. Okay, or if you are dealing with some kind of share market thing, so what is the right mindset, what is the energetic alignment that you need to bring while you do investment. Okay, what is the right mindset that you need to become aware of, okay, and apply. I feel that you found it helpful. If you found it helpful, let me know in the comment, and always remember, this is a timeless reading, so whenever you will find it, it will give you certain message. If you need any personal services, you can reach out. The WhatsApp number is given in the description. Do not forget to like, share, and subscribe, and click the bell icon, so every time I upload a video, you get notified. Take care. Bye bye. I'll see you next.